नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। आज के युवा कट्टा का विषय विश्व शांति दर्शन चैनल के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। इस चैनल के रचयिता प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी के विचारों से भी जुड़ा हुआ है। आपने शायद जान लिया होगा कि आज का विषय भारत के महान सुपुत्र स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर आधारित है। प्राध्यापक डॉक्टर कराड़ सर हमेशा कहते हैं कि नई पीढ़ी के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को मानना जरूरी है। स्वामी जी कहते थे कि यूनियन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिलीजन कैन अलोन ब्रिंग हार्मनी एंड पीस टू मैनकाइंड, यानी एकता और विश्व शांति के लिए विज्ञान और अध्यात्म का मिलाप जरूरी है। संयोग की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में अपना प्रसिद्ध भाषण और माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन लफ्जों का उच्चारण किया था। उसी जगह 130 साल बाद विश्व शांति के पुरस्कर्ता डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने वर्ल्ड पीस डेलीगेशन में अपने विचार रखे। यह भी भारतीय लोगों के लिए गर्व की बात है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के युवा कट्टा को। उड़ान ये हमारी, रंग ये हमारे, सपने हैं अनगिन, आसमां हमारे, नए सवालों की नई तलाश है, आज की राह में कल की आशा है। भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना हम देख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है यूथ, यानी कि युवा। वे कहते थे कि मुझे 100 ऊर्जावान, चरित्रवान और निडर युवक दे दो, मैं भारत का भविष्य बदल दूंगा। आज की युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और कंपटीशन के युग में जी रही है, जहां प्रोग्रेस भी है और चैलेंजेस भी है। ऐसे समय में विवेकानंद जी के विचार महत्वपूर्ण लगते हैं। स्वामी जी के विचार और युवकों का नाता जोड़ने के लिए हमने यंग स्टूडेंट्स यानी कि यंग जनरेशन को कहा कि वह अपने अंदाज में स्वामी विवेकानंद जी के विचार हम सब तक पहुंचाए। आइए सुनते हैं। Today I am reading from Swami Vivekananda's Wisdom for Daily Inspiration. On page number 6, the quote is, "The man who is pure and who dare does all things." This quote helps me realize that when your intentions are pure and you have the dare to do everything in life, you'll achieve a happy, fulfilled life. All misery and pain come from attachment. Attachment is what makes us weak because we start depending on others for our happiness. When we hold on to things very tightly, the more pain it causes us. This quote reminds us that not everything is under our control. Change is the only constant, and letting go is the real strength. You have to be practical in all spheres of work. The whole country has been ruined by masses of theories. Ideas mean nothing if they never touch reality. This thought reminds us that real growth begins when thought meets action and work becomes practical. I am reading a quote of Swami Vivekananda ji. So he says, "It is the patient upbuilding of character, the intense struggle to realize the truth,
which alone will tell in the future of humanity. From this quote, we can learn that patience builds character. स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह कुछ भी नहीं कर सकता। यह विचार युवाओं को भीतर से मजबूत बनाता है। नहीं तो आज के युवा अक्सर कंपैरिजन और फेल्योर के डर में पाए जाते हैं। जब हम स्वामी जी के विचार पढ़ते हैं तो वह विचार हमारे जीवन से एक नाता कायम करते हैं। यही विचार देखिए। The easiest way to make ourselves happy is to see that others are happy. Have faith in yourselves. Great convictions are the mother of great deeds. This is the book I've been reading, and I came across this quote which I would like to read. The remedy for weakness is not brooding over weakness, but thinking of strength. Now, this quote tells me that when we constantly focus our attention on our weaknesses, we feel small. When we keep thinking of what we lack, we give our fears more power. Instead, the real growth begins when we give more attention to our inner strength, which is our abilities, our courage, and our efforts to rise again. Strength goes where attention goes, and when we believe in it, we become it. 1 ounce of practice is worth 20,000 tons of big talk. This quote means that small real actions are way more powerful than endless talk or empty promises. Swami Vivekananda taught us Karma Yoga. He teaches us that true strength and spirituality comes through actions, not through words. He teaches us his whole life is a proof that service and actions, not only for ourselves but for our country, can bring real impact. Think that the whole work is upon your shoulders. Think that you, young man of our motherland, are destined to do this. Put yourself to the task, Lord bless you. ये कोट हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है, वो जिम्मेदारी जो हमारे देश के प्रति है। हम युवाओं को ये याद दिलाता है कि हमारा जीवन सिर्फ हम स्वयं के लिए जीने के लिए नहीं होता है, बल्कि समाज के लिए जीने के लिए होता है। और इस समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने की जिम्मेदारी हम युवाओं के ही कंधों पर है, और हमें इसे पॉजिटिवली देखना चाहिए और इस पर सिर्फ सोचकर नहीं बल्कि एक्शन लेना चाहिए। Quote of Swami Vivekananda ji. There's no limit to man's desires. He goes on desiring, and when he comes to a point where desires cannot be fulfilled, the result is pain. Indeed, this is true. As a human tendency, this takes oneself towards the greediness, and hence no one is contented in their selves. आज का युवा ग्लोबल सोच रखता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के विचार से हम किसी युवा को तभी सफल कह सकते हैं जब वह समाज और राष्ट्र के काम आए। यह सोच बनती है अच्छी शिक्षा से। जब तक जी रहे हैं तब तक हमें सीखते रहना चाहिए, और वे मानते थे कि सच्ची शिक्षा वही है जो आत्मविश्वास, चरित्र और साहस का निर्माण करे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, कमजोर मत बनो, कमजोरी पाप है। आज का युवा ईमानदार और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाए तो भारत को विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और मानव सेवा, यही विवेकानंद जी के विचारों का सार है। वह कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। युवाओं के साथ साथ हमें भी यह संकल्प करना चाहिए कि हम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को केवल सुनेंगे नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारेंगे। हमारा देश तो अच्छा बनेगा ही, मगर दुनिया के लिए, विश्व शांति के लिए वह दिशा दर्शक और विश्व गुरु भी बन सकता है। आज यहीं पर रुकते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं युवा कट्टा में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।